رانو تم بچوں کو لے کر اس بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بچوں کے لیے دانا لے کر آتا ہوں۔ دیکھیے جی، بہت تیز بارش برس رہی ہے، اگر ہماری جان کو خطرہ ہے تو آپ کو بھی خطرہ ہے، رہنے دیں، آپ یہاں ہمارے پاس ہی بیٹھے رہیں۔ پاپا بھوک لگی ہے۔ بھوک لگی ہے پاپا، مجھے کچھ کھانا ہے، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ رانو میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے بچوں کا دانا لے کر ابھی تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ اپنے بچوں کو بڑے پیڑ کے نیچے چھوڑ کر پاپا چڑیا اپنے بچوں کا دانا لینے چلے جاتے ہیں۔ پاپا چڑیا اڑتے اڑتے جنگل کی دوسری دشا میں پہنچتے ہیں۔ یہ تو کٹہل کا پھل ہے، اگر یہ پھل میں کسی طرح اپنے پریوار کے پاس لے جاؤں تو میرا پریوار پیٹ بھر لے گا۔ پاپا چڑیا بھاری کٹہل کا پھل توڑتے ہیں اور واپس اڑتے ہیں۔ چھوٹی بہن دیکھو دیکھو، سامنے ایک چڑا جا رہا ہے جس کے پاس کٹہل کا پھل ہے، ضرور وہ چڑا کٹہل کا پھل اپنے پریوار کے لیے لے کر جا رہا ہوگا، اس کا پیچھا کرتے ہیں، ہم اسے اکیلے کو نہیں بلکہ پورے پریوار کو کھا جائیں گی۔ دونوں چیلیں پاپا چڑیا کا پیچھا کرتی ہیں۔ کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی تو ہے، مجھے کسی کے پنکھ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ پاپا چڑیا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پیچھے دو چیلیں آ رہی تھیں۔ پاپا چڑیا جلدی سے پیڑ کی ڈال پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو میرے پیچھے پیچھے میرے پریوار تک پہنچ جائیں گی، نہیں مجھے انہیں روکنا ہوگا، مجھے انہیں یہاں ہی روکنا ہوگا۔ جاؤ جاؤ چڑے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم جا سکتے ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتی۔ میں تمہاری مکاری سمجھ رہا ہوں، تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ چلی جاؤ، میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی اس جنگل میں رہتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں چیل بہنیں ہنسنے لگتی ہیں۔ اگر تیرا کوئی نہیں ہے تو ہمیں اب اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو سوچا تھا تیرا پیچھا کر کے تیرے پریوار تک پہنچتے ہیں۔ چھوٹی، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو پا رہا، چلو جلدی سے اسے میرا بھوجن بنا دو۔ چھوٹی چیل سیدھی پاپا چڑیا کے چہرے پر حملہ کرتی ہے اور پاپا چڑیا کو نیچے گرا دیتی ہے۔ پاپا چڑیا اپنی تیز چونچ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ ڈیڈی جلدی آؤ، اس کی چونچ بہت مضبوط ہے، اس کے پنکھ مجھے پکڑ رہے ہیں، میں اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری چیل بھی اڑتی ہے اور آ کر پاپا چڑیا پر حملہ کر دیتی ہے۔ گوری کفی اور کالو گوا کہیں سے واپس آ رہے تھے۔ کالو دیکھو دیکھو، مانو چڑے کو چیلوں نے پکڑا ہوا ہے، ہمیں مانو کی مدد کرنی چاہیے۔ بھاگ جاؤ، چھوڑ دو ہمارے دوست کو، ورنہ ہم جنگل کے سارے پکشی اکٹھے کر کے تمہارے پنکھ توڑ دیں گے۔ کالو کفے اور گوری کفی کو دیکھ کر دونوں چیلیں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، لیکن پاپا چڑیا کچھ زیادہ ہی گھائل ہو چکے تھے، وہ زمین پر گرے پڑے تھے۔ کالو جی، شاید مانو چڑا تو مر گیا ہے، یہ تو بیچارہ بول ہی نہیں رہا۔ گوری، یہ کٹہل کا پھل میرے پریوار کو دے دینا، میرا پریوار برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے بچوں سے کہنا کہ اب ان کا بابا کبھی بھی میٹھے پھل لے کر نہیں آئے گا، اس لیے اپنی مما کو زیادہ تنگ مت کرنا، سوکھا دانا ملے تو وہی کھا لینا۔ گوری اٹھاؤ، ہم مانو چڑے کو بلبل ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ نہیں، میرے پاس سمے نہیں ہے، میری سانس رک رہی ہے۔ کالو، میرے بچوں سے کہنا میں ان سے بہت پیار کرتا تھا، میرے بچے مجھے بہت پیارے تھے۔ ایسے کہتے ہوئے پاپا چڑیا اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جنگل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گوری کفی کٹہل کا پھل اٹھاتی ہے اور دونوں کوے برگد کے پیڑ کی طرف اڑتے ہیں۔ پاپا ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ بچوں، برسات کے موسم میں بھوجن بہت مشکل سے ملتا ہے، شاید آپ کے پاپا ابھی تک بھوجن ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ میرے پاپا بہت بہادر ہیں، میرے پاپا تیز بارش میں اڑ سکتے ہیں، میرے پاپا ہمیشہ ہمارے لیے اچھا بھوجن لاتے ہیں، میٹھا پھل لاتے ہیں،
मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने पापा के लिए ऐसे ही मीठे फल ढूंढकर लाया करूंगा। रानो, ये कटहल का फल आपके पति ने दिया है। गौरी, क्या बात है? गुड़िया के पापा कहाँ हैं और आप रो क्यों रही हो? मुझे जल्दी से बताओ, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। रानो, तुम्हारे पति को 2 बड़ी चीलों ने मार दिया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बिगाड़ा था? आखिर मेरे पति ने उन जालिम चीलों का क्या बिगाड़ा था? वो तो कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते थे, हमेशा मेहनत से अपना दाना ढूंढते थे, अपने बच्चों से प्यार करते थे। मम्मा चिड़िया और बच्चे रोने लगते हैं। चलो चिड़िया, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ती है। कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया के साथ जाते हैं और रानो चिड़िया को उसके घर तक छोड़ देते हैं। नहीं खाऊंगी मम्मा, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। गुड़िया बेटी, ये फल आपके पापा ने आपके लिए भेजा था, आपकी भूख मिटाने के लिए आपके पापा ने अपनी जान दे दी। खा ले, ये फल खा ले, क्योंकि आपके पापा आपको भूखा नहीं देख सकते थे। सारी गलती हमारी है। अगर हम पापा से भोजन लाने को ना कहते तो आज हमारे पापा हमारे साथ होते। नहीं बच्चों, जो भाग्य में होता है होकर रहता है, ये सब तो होना ही था। मम्मा चिड़िया कटहल का फल काटती है और अपने बच्चों को खिला देती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठकर रोने लगती है। मैं तो कभी जंगल में दाना लेने अकेली गई भी नहीं, मैं कैसे पालूंगी? मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ये सब। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसी तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज मुझे दाना लेने जाना है। अब मेरे पति तो इस दुनिया में रहे नहीं, आप हर रोज दाना लेने मुझे अपने साथ ले जाया करना। रानो चिड़िया, आपके पति का सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हम छोटे पक्षी कर भी कुछ नहीं सकते। बड़ी चीलें जब दिल करता है किसी न किसी पक्षी को मार देती हैं। रानो चिड़िया और तोता उड़ते हैं और दाना लेने चले जाते हैं। जालिम चील मेरे बेटे को खा गई। आखिर मेरे छोटे से बेटे ने जालिम चील का क्या बिगाड़ा था? मैना अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। चिड़िया और तोता मैना के पास जाते हैं। मैना बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? रानो चिड़िया, आज सुबह से मेरे जालिम चील मेरे घोंसले की तरफ आई और मेरे छोटे से मासूम बेटे को उठा कर ले गई। तोते भैया, आखिर कब तक हम उन जालिम चीलों के जुल्म सहते रहेंगे? अगर हम सब ने मिलकर कुछ ना किया तो एक एक करके वो हम सबको खा जाएगी। रानो, मैं तो आज तक अपनी पत्नी का दुख नहीं भूला। उस बेचारी ने तो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं की थी, लेकिन जालिम चील ने उसे भी ना छोड़ा। छोटी, भूख लगी है, चलो जंगल चले। बड़ी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मैना के बच्चे को खाया है, फिर से भूख लग गई? वो तो बहुत छोटा था, इस बार मैं कोई बड़ा शिकार ढूंढना चाहती हूँ। दोनों चीलें अपनी गुफा से निकलती हैं और जंगल की तरफ चली जाती हैं। कबूतर ऊंचे आसमान में उड़ रहा था। कबूतर दूर से चीलों को देखकर शोर मचाता है। भागो भागो, सब अपनी जान बचाओ, सब अपनी जान बचाओ, गुफा की तरफ से चीलें आ रही हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी मैदान में बैठे दाना चुग रहे थे। वो भी जल्दी से उड़ते हैं और घने जंगल में छुपने के लिए भागते हैं। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और मैना झाड़ियों में छुपे हुए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहां पहुंच जाते हैं। सारे पक्षी झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। काफी देर तक जालिम चीलें आसमान में इधर उधर उड़ती रहती हैं और फिर थक हार कर वापस चली जाती हैं। आज तो वो चली गई, लेकिन कल फिर आएंगी। क्या मालूम कल किसकी बारी है और वो चीलें किसको उठा कर ले जाएंगी। रानो चिड़िया, अब ये सब नहीं चलेगा। मैंने भी सोच लिया है, जब तक हम इन जालिम चीलों को उनके अंत तक नहीं पहुंचाएंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। बस बहुत हो गया। रानो, तोते और कबूतर, अब इस जंगल में या हम रहेंगे या ये चीले।
गौरी बहन, कालू भैया, ये काम जोश से नहीं बल्कि होश से करने वाला है। मेरे पास एक उपाय है। फिर रानू चिड़िया अपने दोस्तों को अपना उपाय बताती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा रानू चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया बहन चले, आज हमें जालिम चीलों को ठिकाने लगाना है। मत जाए, जैसे उन जालिमों ने मेरे पापा को मार दिया, वो आपको भी मार देंगी। गुड़िया बेटी, मुझे अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के पक्षियों के लिए लड़ना है। मैं नहीं चाहती कि वो एक एक करके हम सबको खा जाए। मैं अपने पापा का बहादुर बेटा हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, आप अपनी बहन का ख्याल रखना, आप घर में ही रहो। कालू कौवा और रानू चिड़िया उड़ते हैं और सागर की तरफ जाते हैं। कालू भाई, सागर किनारे तो कोई भी मरी हुई मछली नहीं पड़ी। आपने तो कहा था कि हमें सागर किनारे कोई ना कोई मरी हुई मछली मिल जाएगी। रानो बहन थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही सागर की बड़ी लहर आएगी कोई ना कोई बड़ी मछली किनारे पर रह जाएगी। रानू चिड़िया और कालू कौवा काफी देर इंतजार करते हैं और फिर कालू कौवे को थोड़ी दूर एक बेजान मछली दिखाई देती है जो अपनी जगह पत्थर की तरह जमी पड़ी थी। देखो, वो देखो सामने रानो चिड़िया, वहाँ एक बड़ी मछली है। कालू कौवा और रानू चिड़िया मछली के पास जाते हैं। कालू भैया, आप ये मछली लेकर बरगद के पेड़ की तरफ जाएं और मैं पुराने कुएं से जहरीले बीज लेकर अभी आती हूँ। कालू कौवा जंगल की तरफ चला जाता है और रानू चिड़िया पुराने कुएं की तरफ उड़ती है। मिल गए, मुझे जहरीले काले बीज मिल गए। शायद आज जालिम चीलों का आखिरी दिन होगा। आज मैं उन चीलों से अपने पति का बदला लूंगी और अपने जंगल के दोस्तों को उन चीलों के जुल्म से बचाऊंगी। चिड़िया कुछ काले बीज तोड़ती है और काले बीज लेकर वहां से चली जाती है। गौरी कौवी भी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। कालू कौवा और गौरी कौवी काले बीज कूटकर अच्छी तरह मछली के ऊपर लगा देते हैं। रानू बहन, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब ये मछली चीलों तक पहुंचाएगा कौन? मुझे मालूम है, हर रोज चीलें किस रास्ते से हमारे जंगल की तरफ आती हैं। हम ये मछली किसी बड़े पेड़ पर चीलों के रास्ते में रख देते हैं। फिर कालू कौवा मछली उठाता है और एक ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर वो मछली रख देता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों चील बहनें उस तरफ आ जाती हैं। छोटी छोटी, देखो देखो, पेड़ की डाल पर मछली पड़ी है। शायद किसी पक्षी ने अपने खाने के लिए रखी होगी। बड़ी, आज तो दिन ही बन गया। सुबह सवेरे हमें नरम नरम मछली खाने को मिल गई। चलो जल्दी से जाकर मछली का मांस खाती हैं। दोनों चील बहनें कुछ भी सोचे बिना मछली के पास आती हैं और जहरीली मछली खाने लगती हैं। धड़म की आवाज आती है और दोनों चील बहनें पेड़ से नीचे गिरती हैं। झाड़ियों के पीछे रानू चिड़िया, कौवा और कौवी सब छुपे हुए थे। सब जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकलते हैं। आज बुराई का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। अब ना तो कोई छोटा बच्चा चील का भोजन बनेगा और ना ही बड़ा पक्षी। चलो रानू चिड़िया, अब घर चलें। अब रास्ता साफ है, अब हमें कोई डर नहीं। फिर तीनों